Good morning. Let us start the Z transform. As in the last lecture, we completed the Laplace transform. So Z transform is just for discrete time systems only. As Laplace transform was only for the continuous time, Z transform is only for discrete time. So suppose f omega was minus infinity to infinity f t e to the power माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अगर मुझे इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है, सो इंटीग्रेशन बिकम समेशन एफ एन e to the power माइनस जे ओमेगा एन। सिमिलरली जैसे हमने वहां किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये था ना, एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो हो जाएगा एफ एस प्लस सॉरी सिग्मा प्लस जे ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी टी। तो एस की जगह सिग्मा प्लस जे ओमेगा आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये आ जाता है एफ जेड एन इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटिव एफ एन, इसको पहले ओमेगा ही रखते हैं, ई टू द पावर माइनस ओमेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, ओमेगा टी आएगा ना, ओमेगा एन। So let us assume let r is equals to e to the power sigma. Let r is equals to e to the power sigma. So it can be written as n is equals to minus infinity to infinitive fn r to the power minus n e to the power minus j omega n, or it can be written as n is equals to minus infinity to infinitive fn r into e to the power j omega to the power minus n. So let z is equals to r into e to the power j omega. In that case f omega ये वाला become fz, and it would be n is equals to minus infinity to infinity fn z to the power minus n, where z is equals to r into e to the power j omega and r is equals to e to the power sigma. Mod z is equals to r. अगर आप मोड लोगे तो इसका मोड क्या आ जाता है, 1। मोड z इज इक्वल्स टू r. So z transform is same as Laplace transform but for
discrete time signals and systems only, provided S is equals to sigma plus j omega is replaced by Z is equals to R e to the power j omega. So similarly, similar to S plane, Z transform will have Z plane. तो Z is equals to R e to the power j ओमेगा है. e to the power j ओमेगा अगर आपको याद हो तो इसको प्लॉट करते हैं तो ये एक सर्किल बन जाता है. दैट इज वाई अगर ये सर्किल है, सर्किल मल्टीप्लाई बाई एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू सर्किल. सो Z plane will always be a circle. Z plane will always be a circle with radius r. तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? r होगी. अगर कंपैरिजन करते हैं तो इधर लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इधर लिख लेते हैं Z ट्रांसफॉर्म. तो फर्स्ट थिंग इज it is for continuous, it is for discrete. Second thing is it represents S is sigma plus j omega. It represents Z is equals to R into j omega, where R is equals to e to the power sigma. ठीक है. S प्लेन और इसमें होता है Z प्लेन. सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, S इज इक्वल्स टू j omega. सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 1. सो जो सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन थी, इट इज रिप्लेस्ड बाय R इज इक्वल्स टू 1 और यूनिट सर्किल. Unit circle is the circle whose radius is 1. ठीक है. लेफ्ट साइड ऑफ sigma is equals to 0 is stable region. तो सिग्मा यानी कि 0 से पहले, 0 से पहले, 0 से पहले क्या होगा? इसमें 0 से पहले क्या होगा? निगेटिव वैल्यूज. निगेटिव वैल्यू मतलब 1 by e यानी कि इनसाइड द सर्कल. स्टेबल रीजन इज inside the unit circle. ठीक है. और देखते हैं. 6 right side of sigma is equals to 0 line represents unstable region.
सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव मीन्स e टू द पावर समथिंग पॉजिटिव, इट मीन्स r is positive or r is greater than 1, r is greater than 1, here r is less than 1, means outside the unit circle. Valid only for sigma is equals to minus infinity to infinitive. So s would be minus infinity to infinitive. That will be called ROC. Here if sigma is minus infinity to infinitive, then r is equals to e to the power minus infinitive is equals to 0. R is equals to sigma to the power infinitive is equals to infinitive. So r will be 0 to infinitive. That would be called ROC. ठीक है, तो जो इसकी ROC थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, that was defined for minus infinity to infinity, but for Z transform radius can be 0 to infinite. तो सर्कल की रेडियस क्या हो सकती है, 0 से इनफाइनाइट. तो यहां से ये प्रूफ हो गया. ठीक है. ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं नोट फर्स्ट complex Z plane is set of circles with radius r is equals to 0 to r is equals to infinite. Next, r is equals to 0 in Z plane corresponds to sigma is equals to minus infinity on S plane. R is equals to 1 in Z plane corresponds to sigma is equals to 0 on S plane. R is equals to infinite in Z plane corresponds to sigma is equals to infinite on S plane. नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. तो जैसे कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर set of ROC. There is a limit that Laplace transform is defined for only some particular reason,
Similarly, Z transform will be existed or defined only for some set of values of Z or R. So that will be called ROC of Z transform. तो इसमें लिख सकते हैं Z transform is defined only for set of values of R. It means set of values of R for which Z transform is defined is called region of convergence, which is always in the form of ring. So, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, कुछ सर्कल्स, कुछ बाउंड्रीज होंगी सर्कल्स की, जिसके लिए सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होगा, बाकी के लिए जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं होगा. देखते हैं कैसे, एग्जांपल करते हैं. Evaluate Z transform of del n. So Fz is equals to n is equals to minus infinity to infinity Fn z to the power minus n is equals to minus infinity to infinity del n z to the power minus n. It is equals to n is equals to minus infinity to infinity del n z to the power 0. It becomes 1. N is equals to minus infinity to infinity del n is always 1. So del z transform of del t is always 1. Sorry, Z transform of del n is always 1. Z transform of, question number 2, Z transform of un. ठीक है, un कहां से आता है? un आता है ये, zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. This is called un. Be careful, 0 is included. Be careful that 0 is included. So always remember that un is starting from 0. It is defined at 0, while ut is not defined. Ut is not defined at t is equals to 0, but un u0 is always equals to 1. So अगर मुझे इसका
रिवर्स लेना होगा तो रिवर्स अभी बताऊंगा, फिर पहले इसको देखते हैं। सो एफ जेड इज इक्वल्स टू n is equals to minus infinity to infinitive f n z to the power minus n is equals to 0 to infinitive z to the power minus n. So it is z to the power 0 plus z to the power minus 1 plus z to the power minus 2 plus z to the power minus 3 and so on. So it would be 1 plus z to the power minus 1 plus z to the power minus 2 z to the power minus 3 and so on up to infinite. So by GP 1 a upon 1 plus r, a upon 1 plus r is this z inverse. So this is called fz, or it will be z upon z minus 1. आंसर। अब इसमें जो आरओसी होगी, देखो आरओसी कैसे डिफाइन करेंगे। आरओसी ये जो पोल आएगा ना नीचे वाला, तो इसको हमेशा ऐसे करना है, 1 माइनस जेड इनवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0। जो भी ये पोल है शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 1 शुड बी ग्रेटर देन जेड इनवर्स, 1 should be greater than 1 by z, so z should be greater than 1, so mod z should be greater than 1. This is ROC. Mod z is greater than 1. Mod z is radius. तो ये सर्किल है, सपोज 0 है, r is equals to 0, ये r is equals to 1 है, r is equals to 1. So mod z is greater than 1. तो ये बाहर वाला जो सर्किल है, इसके बाहर r is equals to 1 के बाहर, this is called z plane. देखो डेल एन में क्या था, डेल एन का जो z ट्रांसफॉर्म था वो था 1. इट मींस ROC includes all ranges or values 0 to infinity, यानी कि सब जगह ROC है, सब जगह z ट्रांसफॉर्म डिफाइंड है। बट यहाँ के केस में जब भी आपको पोल मिल जाए, अगर पोल्स आपको मिल रहे हैं z ट्रांसफॉर्म में, इन दैट केस आप क्या करेंगे, पोल को ग्रेटर देन 0 करेंगे और कभी भी ये नहीं लिखेंगे दिस इज नॉट द ROC, ये ROC नहीं है। ROC क्या है, मोड z। ROC इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली बाय मोड z। सो आप z इज ग्रेटर देन 1 नहीं लिखेंगे, आप या तो यहां पे कर लो, ये इस तरह कर लो यहीं से ही, तब आपको ये आदत पड़ जाएगी मोड z करने की। अगर आप z करेंगे z should be greater than 1, it means it is wrong, it does not define the ROC. ROC is defined only and only by r, this r radius, not by z. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास सिग्नल है UN और UN ये डिफाइंड है 1 2 3 4 0 पर। सो U माइनस एन कहां से डिफाइन होना चाहिए फिर, अगर मैं U माइनस एन लेता हूं तो इधर, तो ये होना चाहिए, बट अगर U माइनस एन भी 0 पे डिफाइन होगा और UN भी 0 पे डिफाइन होगा तो ये तो पॉसिबल नहीं, दोनों में से कोई एक ही 0 पे डिफाइन होगा, तो हम क्या मानते हैं, वो डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी अदरवाइज।
क्योंकि जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आना चाहिए, यू एन प्लस यू माइनस एन शुड बी इक्वल्स टू 1। ये होना चाहिए जैसे कि ये था यू टी प्लस यू माइनस टी इज इक्वल्स टू 1। बट अगर आपने यहां पर भी ये ले लिया तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा, 0 पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बाकी सब ये इस तरह बन जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, बाकी सब ये 1। ठीक है, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहां से हटाना होगा 0 से। अगर आप इसको 0 से हटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस एन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि इसमें यू एन नहीं होता, इसमें यू माइनस एन नहीं होता। यू माइनस एन की जगह इसमें क्या होता है, यू माइनस एन माइनस 1 हम लेते हैं। सो यू एन प्लस यू माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। यू एन प्लस यू माइनस एन इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखना। So in discrete system, u minus t is represented by u minus n minus 1. So if we want to evaluate the z transform of u minus n minus 1, it would be f z is equals to n is equals to minus infinity to minus 1 z to the power minus n. So it would be z to the power 1 plus z to the power 2 plus z to the power 3 plus z to the power 4 and so on. So it would be a is z 1 minus z. So ROC क्या होगी इसके केस में, ROC कैसे डिफाइन करेंगे, 1 minus mod z is greater than 1, 1 should be greater than mod z or mod z should be less than 1. So ROC will be defined as, suppose this is unit circle, suppose this is unit circle, ये 1 है, so ROC will be inside the circle. So this is ROC or Z plane for u minus n minus 1. अब देखो जो un था हमारा, un का z ट्रांसफॉर्म क्या था, z अपॉन z माइनस 1 प्लस u माइनस एन माइनस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म है z अपॉन 1 माइनस z। सो माइनस यू माइनस एन माइनस 1 का क्या हो जाएगा, z अपॉन z माइनस 1। इन दोनों का फोरियर z ट्रांसफॉर्म तो सेम है, इन दोनों का un और माइनस यू माइनस एन माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म तो सेम है। जैसे कि ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी 1/s था, माइनस यू माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी 1/s था। ये सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 के लिए था, ये सिग्मा लेस देन 0 के लिए था। सिमिलरली ये r ग्रेटर देन 1 के लिए है और ये r लेस देन 1 के लिए है। सेम
Laplace transform or Z transform. Both mathematical expressions are same, but ROCs are different. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. e to the power n fn e to the power n fn. ठीक है, एफ जेड हमारे पास था, n इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटिव एफ एन z टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एन की जगह रख दो ए एन ए टू द पावर n एफ एन z टू द पावर माइनस n. क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एन z, ये हो जाएगा z ठीक है, e टू द पावर माइनस n ये आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वापस मिल जाएगा. सिर्फ इसको दोबारा से लिखा है. सो इट मीन्स f क्या हो जाता है z बाई ए. सिमिलरली जैसे कि उसमें था कि अगर हम e टू द पावर ए टी एफ टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पे आ जाता है एफ एस प्लस ए. ऐसे ही था ना कुछ, इसी तरह यहां पर ये बन जाता है. सो e टू द पावर यू एन का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/1 माइनस z इनवर्स था, ये आ जाएगा 1 या ये z अपॉन z माइनस ए 1 था तो z बाई ए ये हो जाएगा z बाई ए z माइनस ए बाई ए. इट विल बी z अपॉन z माइनस ए और 1/1 माइनस ए z इनवर्स. ये देखो पूरा z माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, तो mod z should be greater than a. This is ROC. नेक्स्ट देखो, इसमें एक नोट लिखते हैं regarding the ROC. Note: a system will be considered stable or Fourier transformable if discrete time, if and only if ROC of its Z transform includes R is equals to 1 सर्कल. कोई भी सिग्नल या सिस्टम जो डिस्क्रीट टाइम होगा वो स्टेबल कब कहलाया जाएगा, जब वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल होगा.
और ये फॉरियर ट्रांसफॉर्मेबल कब होगा? जब, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने देखा था कि व्हेन इट इंक्लूड्स sigma is equals to zero line. Sigma is equals to zero line is nothing but r is equals to one circle in z plane. So ROC of z transform must include r is equals to one circle. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसको बनाऊं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये आ जाएगा एफ ओमेगा इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, और सिग्मा एन इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एन e to the power j omega to the power minus n, while fz is n is equals to minus infinity to infinity fn z to the power minus n. It means it means for any discrete time system, if its ROC of Z transform includes R is equals to one circle, therefore it is Fourier transformable, which concludes it means by replacing z is equals to e to the power j omega, the z transform of discrete time system can directly be converted into discrete time Fourier transform. इस बात का क्या मतलब है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा कब? जब उस वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल होगा। ये बात हमने पहले प्रूव की थी, डिरिचलेट कंडीशन एक आई थी उसमें। अब अगर कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा? अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम व्हेन इट इंक्लूड्स यूनिट सर्किल, व्हेन इट्स आरओसी इंक्लूड्स यूनिट सर्किल। अगर यूनिट सर्किल इंक्लूड कर रही है आरओसी, इट मींस सिस्टम इज स्टेबल, इट मींस सिस्टम इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल। और फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म में फर्क क्या है? सिर्फ e टू द पावर j ओमेगा को अगर आप z से रिप्लेस कर दो, z को आप e टू द पावर j ओमेगा से रिप्लेस कर दो, किस सिस्टम्स में? जिसमें ROC r इज इक्वल्स में r इज इक्वल्स टू वन सर्कल इंक्लूड है, तो आप z ट्रांसफॉर्म को डायरेक्टली डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन से सिस्टम्स को कन्वर्ट कर सकते हो? जो स्टेबल सिस्टम्स हैं, जिसमें r इज इक्वल्स टू वन सर्कल ROC में इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स को कर सकते हो ऐसा, बाकी किसी और सिस्टम के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं।
Find the Z transform of following signal. So u to the power n का Z ट्रांसफॉर्म है Z अपॉन Z माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n u n का Z ट्रांसफॉर्म क्या है Z बाई a, तो बाई a करेंगे तो यहाँ पे 2Z हो जाएगा, यानी कि Z और Z बाई 2, ये 2Z माइनस 1, और इसकी आरओसी क्या होगी 2 mod Z minus 1 should be greater than 0, 2 mod Z should be greater than 1, Z should be greater than 1 by 2. So this is the ROC. Mod Z should be greater than 1 by 2. Similarly 1 by 4 UN की आ जाएगी 4Z minus 1, mod Z should be greater than 1 by 4. तो एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, उसमें 1 by 2 सर्किल ड्रॉ करते हैं. दिस इज 1 by 2 एंड दिस इज 1 by 4 और ये 1 है. R इज इक्वल्स टू 1, R इज इक्वल्स टू, ठीक है. अब देखो ये वाला, ये हो गया ROC. सही है. और इसकी ROC R ग्रेटर देन 1 by 2 की, ये वाली R से R के बाद, R 1 by 2 के बाद. तो कॉमन कौन सी है R ग्रेटर देन 1 by 4, R ग्रेटर देन 1 by 2. तो R ग्रेटर देन 1 by 2 में दोनों इंक्लूड्स हो रही हैं, R 1 by 4 भी और 1 by 2 भी. इट मीन्स ओवरऑल कॉमन ROC would be mod Z greater than 1 by 2. So overall ROC would be this. Whether the system is stable or not, yes, system is, your signal is stable and causal, जैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देख रहे थे. ठीक है. यहीं पे अगर हम माइनस u माइनस n माइनस 1 ले लेते हैं तो ये लेस देन हो जाएगा सब. और कॉमन ROC क्या आएगी 1 by 4 वाली इनवर्ट. तो लेस देन 1 by 2, लेस देन 1 by 4, तो ये वाला जो पोर्शन है बीच, दिस विल बी कॉमन अगर इन्वर्ट कर लेते हैं तो. ठीक है. और देखते हैं. क्वेश्चन 1 by 2 to the power n plus 1 by 4 to the power n un minus 2 to the power n plus 4 to the power n u minus n minus 1. If this is the Fn, in that case find Fz. So Fz would be 1 by 2 to the power n un will be
2z minus 1 mod z greater than 2, 4z, sorry, 1 by 2, 4z minus 1 mod z greater than 1 by 4, 2 to the power n, u minus n minus 1 will be z upon z minus 2. So mod z should be less than 2, z upon z minus 4 mod z should be less than 4. So अब अगर सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये सपोर्ट सर्किल हो गया 1/4 का, ये 1/2, now this is the circle for r is equals to 2, and this is the circle for r is equals to 4. ठीक है, तो देखो इन दोनों आरओसी में हमने देखा था कि लेस ग्रेटर देन 4, 1/4 ग्रेटर देन 1/2, तो ओवरऑल क्या आया था, ग्रेटर देन 1/2, लेस देन 4, लेस देन 2, तो ओवरऑल क्या आएगा, लेस देन 2 इन दोनों में। फाइनल आरओसी आपकी क्या आ जाएगी, मोड जेड 1/4, ओ सॉरी 2। हाँ बोलो। सर ब्रैकेट में -10 -1 है ना हम्म क्वेश्चन हम्म में? हम्म हम्म हम्म। ठीक है, सो दिस इज द आरओसी, इट इज ए रिंग। अगर आप देखोगे तो इट इज ए रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फाइनाइट रिंग, इट इज ए फाइनाइट रिंग। तो अब आप इसमें जैसे नोट्स हमने लाप्लास में बनाए थे आरओसी को लेके कि किस केस में आरओसी जो है क्या होगी, कि राइट हैंड साइड का कॉमन लेना है या लेफ्ट हैंड साइड का कॉमन लेना है या दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, सिमिलरली यू कैन डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ b to the power mod n. So b to the power n for n greater than 0, b to the power minus n for n less than 0, यही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, f z would be sigma n is equals to minus infinity to minus n b to the power minus n z to the power minus n plus n is equals to 0 to infinity b to the power n z to the power minus n. So it would be b minus minus plus bz b square z square plus b cube z cube and so on plus 1 plus b by z b square by z square b cube by z cube and so on। ये हो जाएगा बी जेड अपॉन 1 माइनस बी जेड प्लस
1 अपॉन 1 माइनस बी बाई जेड, बी जेड 1 माइनस बी जेड, जेड अपॉन जेड माइनस बी। इसका देखते हैं। So 1 minus bz should be greater than 0 mod 1 should be greater than b mod z. So mod z should be less than 1 by b इसके केस में, और इसके केस में z mod z minus b should be greater than 0, should be greater than b. So it is mod z should be greater than b should be less than 1 by b. Mod z should be greater than b should be less than 1 by b. अब देखो, it means it is possible only and only when जो b है वो लेस देन 1 हो, जो b है वो क्या हो, लेस देन 1, क्योंकि ये कब पॉसिबल होगा, जब b जो है फ्रैक्शनल हो, सिर्फ तभी पॉसिबल है, लेस देन 1 हो। तो मॉड b व्हेन लेस देन 1, तो दिस इज आंसर ROC। ये ROC हो जाएगी, और इस ROC के साथ कंडीशन ये भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, तो हमने देखा था कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाज 2 पाई j सिग्मा माइनस इंफिनिटी सिग्मा प्लस इंफिनिटी f s e to the power minus st and ds, sorry, plus st ds. f z would be 1 upon 2 pi j f z z to the power n माइनस 1 आएगा यहाँ डी z, इसको ध्यान रखना। प्रूफ बुक में दिया हुआ है, आप चाहें तो बुक से प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंट सर्कुलर इंटीग्रेशन, सर्कुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। fz is equals to z upon z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, इसका हमें इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। सो fz is equals to z upon z minus 2 z minus 3z plus 6 z upon z minus 2 into z minus 3। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है,
कि जब हम बाई पार्ट्स करेंगे, अब बाई पार्ट्स करने से पहले इस z को इधर लाना है, एफ जेड बाई जेड 1/z-2 z-3। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस z को आपने इधर लाना है, वो क्यों लाना है अभी देखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे अगर, तो z इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो -1 आएगा, तो -1/z-2। z इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो +1 आएगा, z-3। सी हो जाएगा एफ जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू 1/z-3 -z-2। अब आप क्या कर सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल्स टू z/z-3 -z-2। ठीक है, हमें जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है वो z/z-3 या z/z-a का पता है, e⁻n(un). ठीक है, हमें अगर आप यहाँ पे z के साथ कर दोगे और बाई पार्ट्स तब करोगे आ जाएगा, बट वो इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा फिर। इसीलिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऊपर z हो उसको नीचे ले आओ और देन बाई पार्ट्स करो। ठीक है, रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।